حکومت مخالف تحریک کا 11 اکتوبر سے آغاز، پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا۔ حکمت عملی کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ اسلام آباد میں نون لیگ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا اجلاس، ملک میں حقیقی سیاسی تبدیلی لائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی، غفور حیدری اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ، حکومت نے وزارت خارجہ اور FIA کو ٹاسک سونپ دیا۔ وزیراعظم نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ شہزاد اکبر، بابر اعوان اور فواد چودھری شامل۔ اسد عمر، شفقت محمود اور شیخ رشید بھی رکن ہوں گے۔ برطانوی حکومت کو ایک اور خط بھی لکھا جائے گا۔ نواز شریف کو وطن واپس لا کر عدالت پہ پیش کیا جائے گا۔ اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے NRO نہیں ملے گا۔ حزب اختلاف اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہی ہے۔ حکومت بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور، نواز شریف کا مریم نواز سے رابطہ، پارٹی اجلاس بھی کل طلب۔ سابق وزیر اعظم ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ کارروائیوں کے خلاف عالمی فورمز پر آواز اٹھانے، برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کے اداروں کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ کوئی بھی رہنما پارٹی کی اجازت کے بغیر عسکری قیادت سے نہیں ملے گا۔ مسلم لیگ نون نے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ ملنا ضروری ہو تو پارٹی قائد سے اجازت لینا ہوگی۔ نواز شریف کی ہدایت پر احسن اقبال نے سرکولر جاری کر دیا۔ لیگی رہنما غلطی ماننے کی بجائے اداروں کو متنازع بنانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزراء کا اظہار خیال، متوالوں کی بیان بازی پر غور۔ نواز شریف نے اپنے غلاموں کو حکم نامہ جاری کیا۔ سابق وزیر اعظم کے پاس صرف درباری ہیں، سیاسی ورکرز کا ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ مراد سعید کی تنقید۔ شہباز شریف کا پھر امتحان، 14 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ لاہور کی احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو نیب حکام کے حوالے کر دیا۔ 13 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا، بچوں کے اثاثے بڑھانے میں مدد کا الزام بے بنیاد ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ شہباز شریف کے نیب کورٹ میں دلائل، اپنے دور کے ترقیاتی منصوبوں کا ریکارڈ بھی پیش۔ احتساب سے مفرور افراد تحریک چلانے کی اخلاقی جرت نہیں رکھتے۔ نیب نے شہباز شریف کو زیادہ نمازیں اور عبادات کرنے پر گرفتار نہیں کیا۔ وہ اپنی لازوال کرپشن کے باعث پابند سلاسل ہوئے۔ فیاض الحسن چوہان۔ میاں شہباز شریف نے عدالت کے سامنے یہ چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کے پاس آپ نے 110 کے قریب گواہ جو ہے وہ سائٹ کیے ہیں، کسی ایک گواہ نے میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام لگایا ہو جو یہ منی لانڈرنگ کا وہی بیلا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ دکھائے۔ کسی ایک گواہ نے بھی شہباز شریف پر الزام نہیں لگایا۔ یہ انتقام اور ظلم ہے۔ نون لیگ بھرپور مقابلہ کرے گی، PDM کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں گے۔ لیگی قیادت کا اداروں کے ساتھ تصادم کا تاثر غلط ہے، رانا ثناء اللہ کا موقف۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت، اپوزیشن لیڈر کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ دوسری بیٹی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور۔ سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ طلب۔ مودی سرکار باز نہ آئی، شہری آبادی پھر نشانہ۔ کنٹرول لائن کے برو اور تندر سیکٹر پر بھارتی فوج کی پھر بلا اشتعال فائرنگ۔ سپاہی شفیق اور 15 سالہ لڑکا شہید، بزرگ شہری سمیت 4 افراد زخمی۔
पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। सीज़फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, इंडिया भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बना रहा है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के 20 रुकनी वफ्द का मीरनशाह का दौरा, अस्करी हुक्काम के अरकान पार्लियामेंट को पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और सरहदी चौकियों पर ब्रीफिंग। अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम मुसालहती किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन होगा। अपने फवायद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। अब अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक नए मुस्तकबिल की जानिब देखना है। चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। डॉक्टर अब्दुल्ला से अमन अमल पर तफसीली बातचीत हुई। आलमी बिरादरी अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। नून लीगी अरकान असम्बली के वजीर आला पंजाब से राबतों में तेजी, नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करने वाले जलील अहमद शर्कपुरी और दीगर MPs की मुलाकात, उस्मान बुज़दार की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इत्तेहादी जमात से ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत। अफरा तफरी फैलाने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं, उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल्स भी कल से ओपन, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला किया गया। वालिदैन तसल्ली रखें, तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर पुलिस की तारीखी बदतरीन कारकर्दगी, दर्जनों तहकीकाती टीमों की कागजी खानापुरी। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक गिरफ्तार न हो सका। मुतासरा खातून बयान देने पर रजामंद। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का कल से आगाज, मुल्तान में तैयारियां मुकम्मल। नेशनल T20 कप के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा का टाकरा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी, सैयद आयशा नाज और मैं हूं सैयद मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। सबसे पहले आपको अपडेट करें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का 11 अक्टूबर से आगाज होगा और पहला जलसा कोयटा में होगा। APC के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। नून लीग की मेजबानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास हुआ, जिसके बाद एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि PDM तहरीक का आगाज पूरे मुल्क में होगा। इस इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा क्या, पहले वो सुनिए। आज अपोजिशन की जमातों का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मुल्क में जो तारीखी करप्शन है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, अवाम परेशान है, इन मसाइल पर बहस की गई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस मकसद के लिए आगे बढ़ी है, इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करने के लिए, अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए, उस पर तबादला ख्याल हुआ। जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी थी वो आज मंजूर हुई और ये स्टीयरिंग कमेटी जो है, ये जो PDM जो तहरीक है उसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है
उसका आगाज़ इंशाअल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाअल्लाह कामयाब होगी। तमाम जमातें इन फैसलों पर मुत्तफिक हैं। ये मूवमेंट, ये तहरीक जो है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक सिर्फ सुनहरा कदम ही नहीं बल्कि एक हकीकी सियासी तब्दीली यहाँ से इंशाअल्लाह रूनुमा हो। पीडीएम के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने क्या कहा, आपने उनको सुन लिया। शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सारे मामले पर नजर रखी। उनसे मजीद बात करते हैं, तफसील जान लेते हैं। शाकिर, कहिएगा किस किस ने शिरकत की, किन मामलात को यहाँ पर ज़ेर गौर लाया गया और 11 अक्टूबर से जिस तहरीक का आगाज़ हो रहा है उसके लिए किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जी देखें, ये 3 बुनियादी तौर पर बड़े फैसले किए गए हैं। एक तो स्टीयरिंग कमेटी एहतजाजी तहरीक का लाया अमल तय करने के लिए तैयार की गई है, बनाई गई है, उसकी मंजूरी दी गई है। एहसन इकबाल को इसका कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। ये रोटेशन पर ये कन्वीनरशिप जो है होगी वो तमाम जमातों को मिलती रहेगी। पहले महीने के लिए 1 महीने के लिए एहसन इकबाल को दी गई है। 2 मेंबरान होंगे इस स्टीयरिंग कमेटी में हर जमात से, और ये कमेटी जो है एक तंजीमी ढांचा पीडीएम का और सूबाई सतह पर जो पीडीएम बनेगा तंजीम साजी होगी, और ज़िला लेवल पर भी जो होगी उसका भी एक खाका ये तैयार करके पार्टी कायदीन को भेजेंगे। और 11 अक्टूबर को कोयटा में एहतजाजी जलसा किया जाएगा। ये आगाज़ होगा पीडीएम के एहतजाजी तहरीक का। महमूद खान अचकज़ई इससे पहले हम खबर दे चुके हैं कि उन्होंने 7 अक्टूबर की तजवीज़ किया था और ये भी ऑप्शन दिया था कि अगर मसरूफियत है सियासी जमातों की एक 2-4 दिन आगे पीछे करना चाहे तो वो भी डेट चेंज कर सकते हैं। तो 11 अक्टूबर की डेट तय की गई है। मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है और जो नेब की बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं इसके अलावा भी अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ उनको इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दिया गया है और उनकी मजम्मत की गई है। हुकूमती कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और मसाइल जो बढ़ रहे हैं, मईशत का हाल जो है, इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। और ये भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत को ये जो एहतजाजी तहरीक पीडीएम की शुरू होगी इसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत को घर भेज कर ही दम लिया जाएगा। तो ये तमाम जो जमातें हैं, 11 जमातों के अरकान शरीक हुए। नून लीग की तरफ से 4 मेंबरान थे, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 4 मेंबरान ने शिरकत की, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर। इसी तरह जेयूआ की तरफ से 2 मेंबरान शरीक हुए, अकरम खान दुरानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। बाकी जो जमातें हैं, मौलाना शाहवेस नूरानी जेयूपी की तरफ से, उस्मान खान काकड़ जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी की तरफ से, और जहां से जमालुद्दीन जुन्नी जो है। अक्टूबर से इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज होगा, स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। शाकिर सोलंकी ने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुतल्लिका इदारों और महकमों को ये हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया है। जरा ये बता रहे हैं नवाज शरीफ को वापस लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। ऑपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि ऑपोजिशन जमातें केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ा बना रही हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। मजीद जानेंगे उमर जट से। उमर, बताइएगा, इदारों को टास्क सौंप दिया गया है? जी बिल्कुल। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद 0 ओवर इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अमूर पर गौर किया गया। एक तो हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दामात को तेज करने का फैसला किया, और साथ ही वफाकी हुकूमत ने आज एक और बड़ा फैसला किया है कि बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखा जाएगा। इस हवाले से वजारत खारजा और FIA को टास्क भी सौंप दिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये हिदायत की है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दामात तेज किए जाएं और मुख्तलिफ जो कानूनी पहलू हैं उन पर गौर किया जाए। आज का जो इजलास था उसमें वज़ीर आज़म ने सीनियर वज़रा पर एक कमेटी भी तश्कील की। शहजाद अकबर, डॉक्टर बाबर अवान, फवाद चौधरी, असद उमर, शफकत महमूद, शेख रशीद इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी एक तो अपोजिशन की जो तहरीक है, सियासी मामलात को देखने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है वज़ीर आज़म की हिदायत पर। शुक्रिया उमर जट आपका। उधर नवाज शरीफ की हिदायत पर अस्करी क़यादत से मुलाकात ना करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया। हम पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहे हैं,
सर्कुलर में कहा गया कि कोई भी शख्स या वफ्द अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। जरूरत हुई तो पार्टी कायद से इजाजत लेकर मुलाकात हो सकेगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर एहसन इकबाल ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है। इससे पहले ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने रहनुमाओं को, कारकुनान को यह हिदायत जारी की थी और अब बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की हिदायत पर, जिसमें यह लिखा गया है कि किसी भी किस्म की मुलाकात अस्करी क़यादत से नहीं की जाएगी। हम पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहे हैं। कोई भी शख्स या वफ्द अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। अगर जरूरत हुई तो पार्टी कायद से इजाजत लेकर मुलाकात हो सकेगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर एहसन इकबाल ने सर्कुलर जारी किया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरे फैसलों से बच्चों के कारोबार को 90 करोड़ का नुकसान पहुंचा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। अरशद अली की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत की। नैब हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी हसार में शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने खुद दलाल देते हुए कहा कि मैंने 3 अदवार में सूबे की खिदमत की, कभी TADA तक नहीं दिया, जो सफर किया जेब से किया। मेरे फैसलों से बच्चों के कारोबार को 90 करोड़ का नुकसान पहुंचा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। अदालत ने कहा कि आप ये सब बातें नैब के तफ्तीशी अफसर को बताएं। जिस पर शहबाज शरीफ बोले, नैब के तफ्तीशी अफसर सब कुछ जानते हैं मगर बोलते नहीं। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जायदाद को मैंने अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करवाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाल में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तमाम हकायक ठोस सबूतों के साथ मौजूद हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपको रिमांड क्यों चाहिए। रेफरेंस तो दायर कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बैरून मुल्क शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, उनके जराए जानना है। अदालत ने 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। उनका कहना था कि तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, 25,000 सफात की बात करने वाले गवाह नहीं ला सके। मियां शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन कि आपके पास आपने 110 के करीब गवाह जो है वो साइट किए हैं, किसी एक गवाह ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम लगाया हो। जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही बेला कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाए। उनके तमाम असासे पिछले 15-20 साल से 2 जगह पे जो है वो डिक्लेयर्ड है। अपने वोटर्स के लिए यही पैगाम दिया है कि नैब ने Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.